Let's see the construction of the deflection magnetometer. Okay, so construction is like this. So this is the diagram for the deflection magnetometer. So in this deflection magnetometer, what is there? There is a compass needle here. Okay, so this is the compass needle. You can see this here in compass needle is, or magnetic needle is placed here. Magnetic compass is placed here. Okay, and to this compass, okay, which is also called as magnetometer box. Magnetometer box is there. Okay, so magnetometer box consists of a magnetic needle which can rotate in vertical plane. Okay, to this magnetometer box a wooden frame is connected like this. On both sides there is a wooden frame, and on this wooden frame a meter scale is fixed. वुडन फ्रेम पे क्या किया है, इधर एक मीटर स्केल को इधर फिक्स किया है like this. So that is only the construction. So this magnetometer basically consists of, okay, this magnetometer is basically consist of a magnetometer box. Okay, magnetometer box, so which is placed here, magnetometer box, in which there is a magnetic needle. This magnetic needle can rotate about vertical axis, and to this magnetometer box there is a wooden frame attached to the left hand side and right hand side. Okay, and on this meter scale, on this wooden frame a meter scale is printed, or meter scale is fixed on this wooden frame. Okay, so this is a wooden frame, and on this wooden frame there is a meter scale. So this is the basic construction, very simple construction. Okay, so this deflection magnetometer is used in two positions. डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को यूज करने के लिए हम इसको दो पोजीशन में यूज कर सकते हैं. ओके, दो पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट इज द परपेंडिकुलर पोजीशन. परपेंडिकुलर पोजीशन फर्स्ट कौन सा है? परपेंडिकुलर पोजीशन है. So diagram of the perpendicular position is same like this. This is the diagram of the perpendicular position. अभी इसको perpendicular position हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि perpendicular position हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए BH को वुडन फ्रेम कैसा है? परपेंडिकुलर है. So this wooden frame is perpendicular to magnetic meridian. Okay, so this deflection magnetometer is held perpendicular to the magnetic meridian, and therefore it is called as perpendicular position. अगर मैग्नेटिक मेरिडियन को पैरेलल इसको रखते हैं तो इसे हम पैरेलल बोलेंगे. मैग्नेटिक मेरिडियन को इसको परपेंडिकुलर रखते हैं तो परपेंडिकुलर बोलेंगे. ठीक है, अभी देखिए इस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन को मतलब BH को परपेंडिकुलर रखा है. यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होंगे. कौन से मैग्नेटिक फील्ड? एक तो BH रहेगा. सो BH इज इन दिस. BH कहां पे रहेगा? इन दिस डायरेक्शन पे रहेगा. BH will act in south to the north direction. ओके, ये तो BH हो गया. ओके, सो मैग्नेटिक नीडल पे पहले BH एक्ट होगा. ड्यू टू BH मैग्नेटिक नीडल विल बी इनिशियली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल दिख रहा है वो पहले कौन से डायरेक्शन में रहेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा. अभी क्या करना है, एक छोटा सा बार मैग्नेट में ले लूंगा. बार मैग्नेट, ओके, लाइक दिस, व्हिच इज प्लेस्ड हियर. एक बार मैग्नेट ले लूंगा और ये बार मैग्नेट मैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखूंगा. ओके, बार मैग्नेट जिसका हमें मेजरमेंट करना है. ठीक है, वो बार मैग्नेट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखूंगा. सो नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स दैट कॉइल.
अभी ड्यू टू दिस बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस रहेगा. सो दिस इज बी अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट बार मैग्नेट. मतलब इधर क्या होगा, हो जाएगा, अभी मैग्नेटिक नीडल क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल पर क्या हो जाएगा, BH और B एक्सिस. BH मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड B एक्सिस मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट. ये दो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होंगे. ठीक है. सो अभी सपोज मैग्नेट रखने के बाद इधर डिफ्लेक्शन सपोज कितना आता है, थीटा डिफ्लेक्शन आता है. सो थीटा डिफ्लेक्शन किसके साथ है, BH के साथ. सो बाय टेंजेंट लॉ we can use formula that is BH tan theta is equal to B axis and BH tan theta is equal to B axis मतलब क्या रहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई. मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट कितना रहता है, 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब रहता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब. अभी देखिए इधर अगर हमें BH पता है, उसके बाद थीटा हम मेजर कर सकते हैं ऑन दैट स्केल. म्यू नॉट बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट. ये डिस्टेंस r भी हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्केल, क्योंकि वुडन बोर्ड पे जो मीटर स्केल है, सो उसका यूज करके हम ये डिस्टेंस r भी मेजर कर सकते हैं. तो व्हाट इज रिमेनिंग, कैपिटल M इज ओनली रिमेनिंग. अगर m पता है तो BH मेजर कर सकते हैं, और BH पता है तो कैपिटल M मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर पोजीशन. सो एनी डाउट इन दिस केस, परपेंडिकुलर पोजीशन में कुछ डाउट है क्या, बोलिए. So once again I am repeating, परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या होता है, वुडन फ्रेम या फिर ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है वो परपेंडिकुलर रखा जाता है. किसको परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर रखा जाता है. और वहां पे जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होंगे. एक तो BH रहेगा साउथ टू नॉर्थ, और दूसरा रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट उस वुडन फ्रेम पे रखेंगे, ओके, और उसका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑन मैग्नेटिक नीडल एक्ट होगा. क्योंकि मैग्नेटिक नीडल कहाँ पे है, बार मैग्नेट के एक्सिस पे है, तो B एक्सिस एक्ट हो जाएगा. BH एंड B एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज मैग्नेटिक नीडल पहले तो BH डायरेक्शन में रहेगा ना, और B एक्सिस एक्ट करने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. और सपोज BH से कितना एंगल करता है, थीटा एंगल करता है. मैग्नेटिक नीडल सपोज BH से थीटा एंगल करता है, तो बाय टेंजेंट लॉ का क्या आ जाएगा, BH tan थीटा इज इक्वल टू B एक्सिस. सो therefore BH tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by r cube. And by using the formula you can do whatever calculation is required. मतलब BH पता है तो M निकाल सकते हैं, और M पता है तो BH निकाल सकते हैं. So in this way we can measure. उसके बाद सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, उसको हम पैरेलल पोजीशन बोलते हैं. सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरेलल पोजीशन. सेकंड पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरेलल पोजीशन. सो पैरेलल पोजीशन में क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटोमीटर है, ओके, सो मैग्नेटोमीटर इज हेल्ड, मैग्नेटोमीटर is held parallel to the meridian. ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उसको पैरेलल रखेंगे. मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ रहता है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है वर्टिकल प्लेन. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेंगे, अब हम इसको रखेंगे. सो लाइक दिस. ठीक है. सो वंस अगेन नाउ BH का डायरेक्शन कैसा रहेगा, देखिए BH का डायरेक्शन तो ऐसा रहेगा, that is south to north. It always remains from south to north. So this is the direction of the BH. इसको BH बोलेंगे हम. ठीक है. और यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखेंगे, यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखेंगे. So here there is a bar magnet. ओके, सो बार मैग्नेट इज प्लेस लाइक दिस. अभी क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट के इक्वेटर पे वो कंपास रहेगा.
बार मैग्नेट के इक्वेटर पे, ये जो बार मैग्नेट इधर मैंने रखा है, ओके, सो दिस इज अ बार मैग्नेट, ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, उसके इक्वेटर पे क्या है, कौन सा पॉइंट है, इक्वेटर पे वो कंपास है। सो इक्वेटर पे कंपास मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द यूअर बी इक्वेटर, बी इक्वेटर रहेगा। सो वंस अगेन ऑन मैग्नेटिक नीडल टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर एक्टिंग, BH and B equator which are perpendicular to each other, and once again suppose now magnetic needle makes angle theta with BH, तो इधर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, BH tan theta is equal to B equator लिख सकते हैं। so BH tan theta is equal to mu naught by 4 pi, B equator का फॉर्मूला रहता है mu naught by 4 pi m by r cube, ठीक है ना, on the axis mu naught by 4 pi 2 m by r cube, on the equator mu naught by 4 pi m by r cube, okay, and by using this formula, क्योंकि डायरेक्टली हम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पे थीटा मेजर कर सकते हैं, आर मेजर कर सकते हैं, थीटा एंड आर कैन बी मेजर्ड, if you know m you can measure BH, okay, so in this way there is a parallel position of the deflection magnetometer, so in this way it can be used to measure either BH or m, okay, so any doubt in this case?